Good morning, students. I hope you all are fit and fine. As you know, we have completed reading of chapter 2, first and second. Today we are going to start chapter 3. Name of the chapter is Eidgah. Eidgah, what is the meaning of Eidgah? A place set apart from public for public prayers. एक ऐसी place जो set की जाती है जहाँ पे public prayer कर सकती है ईद के occasion पर, ठीक है? That is the meaning of Eidgah. A full 30 days after Ramzan comes. Ramzan, you know what is the meaning of Ramzan? 9 months of the Islamic calendar, a month of fasting for worshippers. जब worshippers 9 months के लिए fasting करते हैं, ठीक है? तो it was a day after 13 days Ramzan comes. It was a glorious morning. The village was agog with excitement. ये बहुत glorious मॉर्निंग थी, सभी बहुत खुश थे और ऑल द पीपल इन द विलेज आर वेरी एक्साइटेड. सभी बहुत एक्साइटेड भी हैं. पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू ईदगाह, है ना? दे ऑल वर एक्साइटेड टू गो टू ईदगाह, कि हम ईदगाह पे जाएंगे. बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वाज हामिद. हामिद मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, एंड ही वाज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल. वो सबसे ज्यादा खुश है. A little boy of 4 or 5, and his age was between 4 or 5, and he was an orphan. Who is orphan? Whose parents has died. है ना? Orphan है वो. He lived with his grandmother. वो अपनी grandmother अमीना. What is the name of his grandmother? अमीना. अपनी grandmother के साथ रह रहा है. And slept in her protective arms. उनके साथ ही वो सोता है. Thinking that his father would come back with bags full of money and his mother would be back from heaven with beautiful gifts. Hope is wonderful thing and child's hope. And he believed that his father and his mother would come back. है ना? उसे ऐसे लग रहा है, वो होप करता है, वो उम्मीद करता है कि उसके पेरेंट्स वापस आ जाएंगे हेवन से, है ना? और they would bring beautiful gifts for him, कि मेरे लिए अच्छे गिफ्ट्स लेके आएंगे. And he had a hope, and hope is a wonderful thing for the children. इस उम्मीद के ऊपर वो सोच रहा है कि वो आएंगे, ईद वाले दिन आएंगे. and he was very very happy. बहुत खुश है ये सोच के. Poor Amina sat in her hovel. What is the meaning of hovel? Hovel meaning a small dirty house. छोटा सा घर जो बहुत गंदा भी है. जो अमीना है, मतलब उसकी ग्रैंड मदर है, वो अपने रूम में बैठी है एंड क्राइड, वो रो रही है. इट वाज ईद थी. शी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस. हाउस में खाने के लिए कुछ भी नहीं. दे हैड नथिंग टू ईट. शी वाज फिल्ड विद ग्लूम. ग्लूम मींस सैडनेस. बहुत सैड है वो. शी वाज वेरी सैड एंड डिस्पेयर. मीनिंग ऑफ डिस्पेयर विद कंप्लीट लॉस ऑफ होप. शी डिडंट हैव एनी होप. She was filled with gloom and despair when Hamid entered the hut. And then Hamid came and said, "You must not worry, Amma. टेंशन लेने की कोई बात नहीं. I will back before anyone else." मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और खाने के लिए भी कुछ ले आऊंगा. Amina felt a tightening around her heart. उसे बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है ना, बहुत ज्यादा टाइटनिंग फील कर रही है. वो अपने हार्ट के अराउंड टेंशन हो रही है उसे, है ना, कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं. बट विल वी डू नाउ, क्या करेंगे? बट विल वी ईट, क्या खाएंगे? अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विद देयर फादर बट Hamid had no one to accompany him. All the children in the villages are going with their parents. वो पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं. And Hamid was going alone.
है ना, इसके साथ सोए भी नहीं। He had no shoes, had to walk 3 miles. पहनने के लिए कोई शूज नहीं और 3 miles तुरना है उसने। And he would get blisters. Blisters होते हैं swelling on the skin caused by friction or burning. धूप इतनी ज्यादा है, नंगे पाँव चल के फ्रिक्शन के साथ, धूप के साथ उसके जो ब्लिस्ट इन्फेक्शन हो गई, ब्लिस्टर्स हो गए, स्वेलिंग हो गई पाँव के ऊपर। There were only 8 पैसे in the house. घर में 8 पैसे ही थे। Sorry for inconvenience, beta. Next, where would be? Yes. घर पे सिर्फ 8 पैसे ही थे and 3 in हामिद्स पॉकेट। 3 पैसे तो हामिद के पॉकेट में थे और जो 5 थे वो अमीना की पाउच में रखे हुए थे उसने। The villagers started for the fair, ना विलेजर्स ने जाना स्टार्ट कर दिया, विलेजर्स ने जाना स्टार्ट कर दिया फेयर में। हामिद was walking alone with other children, उसके साथ उसके फ्रेंड्स हैं, है ना, और बच्चे हैं। Why were they walking so slowly? Yes. अब क्या हुआ कि उनके पास सिर्फ घर में कितने हैं? 8 पैसे ही हैं। हामिद की पॉकेट में 3 हैं, 5 अम्मा के पास हैं। द विलेजर्स स्टार्टेड फॉर द फेयर, विलेजर्स ने जाना स्टार्ट कर दिया। हामिद वाज वॉकिंग अलोंग विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ वो जा रहा है। व्हाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली, है ना, वो बहुत स्लो चल रहे हैं सारे। व्हाटएवर कॉट देयर आईज दे हैव स्टैंड एंड गेव बैक इन अ वंडर, जो भी रास्ते में आता, बहुत सारी शॉप्स थी एंड दे स्टॉप देयर एंड स्टार्टेड वाचिंग, देखना स्टार्ट कर देते उन शॉप्स को। Hamid felt he had wings. He had wings on his feet. और उसे क्या लग रहा था कि उसके पाँव के नीचे तो विंग्स लगे हैं, बस उसने कहीं पे भी नहीं रुकना, उसने बस इधर उधर ही देखना है कि उसने सीधा जो उसने सोचा हुआ उसने वही करना है। Suddenly they could see the eagle, है ना, फिर वो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको देखना वो स्टार्ट कर देते हैं। There were so many rows upon rows of worshippers as far as eyes could see, spelling will beyond the mosque कोर्टयार्ड। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारे वर्शिपर्स बैठे थे, है ना, सभी मॉस्क में जितनी भी कोर्टयार्ड थी वो सारा फील्ड था एरिया। हियर नीदर वेल्थ नॉर स्टेटस मैटर्स बिकॉज इन द आईज ऑफ इस्लाम ऑल मैन आर इक्वल। किसी के पास अगर पैसा है, अगर स्टेटस भी है, तो वो मैटर नहीं करता, बिकॉज इन द इस्लाम ऑल मैन आर इक्वल, सभी बराबर हैं, सब एक साथ रोज में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ वो देखते हैं। The prayers were over, prayer has done, men embarrassed each other, एक दूसरे को गले मिलना स्टार्ट कर दिया। They descended on the street shops, a merry-go-round, wooden horses and camels suspended on roads, and the toy vendors. तब क्या हुआ, सभी लोग स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, मैरी गो अराउंड जा रहे हैं, वुडन हॉर्सेस जो हैं उनको देख रहे हैं, कैमल्स हैं रोड्स पे, टॉय वेंडर्स हैं, है ना, शॉप्स हैं। और हम इस फ्रेंड्स महमूद, मोहसिन, नूरे एंड समी रोड ऑन द कैमल, वो सभी कैमल के ऊपर बैठते हैं जो जिसके फ्रेंड्स के नाम है। एंड हॉर्सेस, हमीद स्टूड एट सम डिस्टेंस, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता। ही क्रिएटेड
some distance from his friends, he couldn't waste 1/3 of his treasure on an ordinary ride. और वो क्या सोच रहा है कि मैं अपना पैसा जो है उसको एक ऑर्डिनरी राइड के ऊपर वेस्ट नहीं करूंगा, आई विल डू समथिंग एल्स, उसने कुछ और करना होगा, कुछ और सोचा होगा. Then the children bought play toys and he looked at them with longing, hoping that he could carry them for a little while. सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, they all were purchasing toys and he was looking at them and he was also thinking that he will take it from them and he will play. और वो क्या सोच रहा है कि मैं बाकी बच्चों से बोरो कर लूंगा और उनके साथ ही खेल लूंगा. After the toys it was sweets. हामिद आप toys के बाद वो sweets के पास चले जाते हैं. Hamid remained aloof. Now what is the meaning of aloof? Aloof means not friendly or interested in other people. वो बिल्कुल भी friendly नहीं होता और interested भी नहीं होता. The boys bought sweets and teased Hamid. सभी क्या करते हैं, स्वीट्स ले लेते हैं, लेकिन वो हामिद को टीज करना, मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं. The hardware shop that lay ahead had no attraction for the boys. They walked no except Hamid. अब क्या हुआ, एक हार्डवेयर शॉप आ गई, so किसी का भी शॉप के ऊपर ध्यान नहीं गया, लेकिन हामिद उसे देख रहा था. एंड उसका ध्यान कहाँ पे गया? A pair of tongs caught his attention. His grandmother didn't have one. उसका ध्यान एक टोंग्स की तरफ गया. टोंग्स, और बेटा जो हार्डवेयर का मतलब है, हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि उस शॉप में वो वाले टूल्स मिल रहे थे जो हम घर में और गार्डन में यूज करने के लिए यूज करते हैं. और टोंग का मतलब होता है अ टूल विद मूवेबल आर्म्स. एक ऐसा टूल जिसमें मूवेबल आर्म्स लगी होती हैं जो एक दूसरे के साथ एंड पे ज्वाइंट होती है ना. किसी चीज को पिक करने के लिए वो यूज किया जाता है और उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है. एंड क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर के पास कोई है नहीं. Each time she made चपाती, she burned her finger. जब भी उसकी मदर चपाती बनाती हैं, उनकी फिंगर्स जल जाती हैं. If we bought these songs, she would be happier. वो क्या सोच रहा है कि अगर अपनी ग्रैंडमा के लिए ये मैं ले जाऊँ and she will be very happy. It had be useful item in the house. एक यूजफुल चीज रहेगी घर में लेके जाने के लिए. He asked the shopkeeper and how much is this for? और वो क्या पूछते कि कितने की है. He looked at the boy. Shopkeeper looked at the boy. This is no use to you. ये आपकी चीज के लिए, ये आपके काम की नहीं. It's for sale. ये बेचने के लिए है. For it is of 6 पैसा. 6 पैसे की है. Hamid heart sank. के 3 है लेकिन पैसे 6 है. He picked up his courage and said, he picked up his courage and said faintly, will you take 3? और वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, करेज के साथ कहता है कि मेरे पास 3 ही है. will you take 3? क्या आप ये 3 ले लोगे? and walked on. और वहां से चला जाता है. afraid that the shopkeeper would scream at him. और डरता भी है कि मेरे पे चिल्लाएगा, है ना, 6 थे मेरे 3 ही दिए. but the man called him back and gave him the tongs. और वो वापस आदमी उन्हें बुलाता है और उसे वो टोंग्स दे देता है. Hamid put it on और वो उसे उठा लेता है. In his shoulders like a gun. गन की तरह उठा लेता है. Filled with pride. बहुत प्राइड फील करता है. And joined his friends. And he joined the company of his friends. Moshin said, why have you bought a pair of tongs? What will you do with it? आपने ये क्यों परचेज किए? आप इसके साथ क्या करोगे? उसके दोस्त उससे पूछते हैं. Mahmood said, so you have made the tongs into a toy. अच्छा, तो आपने इसको टॉय के लिए यूज करोगे आप इसे. Hamid replied, why not? क्यों नहीं? If I hit your toys with it, they will all break. अगर मैं एक बार अपने इसके साथ आपके टॉयज को हिट कर दूं तो वो टूट जाएंगे. मशीन said, thought of a new way to taunt Hamid. और जो मौसीन है उसे टॉन्ट करने की कोशिश करता है. Your tongs will burn its nose in the every 5. Your tongs will burn its nose in the fire every day. ये जो हमारे टोंग्स हैं, ये जो इसका नोज है, इसका नोज जल जाएगा फायर में, आग में, डेली जल जाएगा. हामिद had a quick reply. और हामिद उसे क्या आंसर करता है? Only the brave dare jump into the fire. जो ब्रेव होते हैं उनमें ही हिम्मत होती है आग में चले जाने की. The 3 boys were utterly squashed. Hamid had won the field. ऐसे उनकी बहस चलती रहती है और हामिद उनको बहस में अपने बराबर खरीदने ही नहीं देता. None of the boys could dispute the fact. कोई भी बहस नहीं करता.
हामिद ड्यूटी वाज द हामिद्स बाय वाज द बेस्ट। सभी एग्री कर जाते हैं कि हामिद ने जो खरीदा इट वाज द बेस्ट। द रिस्पेक्ट दैट विक्टर कमांडेड फ्रॉम द वैंक्विश्ड वाज पेड टू हामिद। एक रिस्पेक्ट जो एक जीता हुआ पर्सन दूसरों को विक्ट्री को मिल जाती है, जो रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट उसे मिल रही थी। किससे मिल रही थी? द डिफीटेड वंस, जो हार चुके थे बहस में। द अदर्स हैड स्पेंट, जो दूसरे थे उन्होंने 16 पैसे वेस्ट कर दिए थे, लेकिन कुछ भी वैल्यूएबल थिंग्स नहीं खरीदी। वर्थ वाइल का मीन्स कुछ भी वैल्यूएबल नहीं खरीदा। पीस टॉक्स बिगेन, ठीक है। Each of the boys began to strike a deal with Hamid. Mohsin said, "Let me see your tongs." फिर मोशन बोलता है कि मुझे भी दिखा दो अपने tongs. You can carry my toy. आप मेरे toy उठा लो. Hamid had no objection. उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी to accepting such terms. उसने दिखा दिया. The tongs gradually passed from one hand to another while Hamid was allowed to handle the toys. अब क्या हुआ? उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिए, सभी उसका टॉय देखने लगे, वो उनके टॉयज देखने लगा। हामिद टोन वाज कंसीलिएटरी। कंसीलिएटरी का मतलब होता है मेकिंग एंग्री पीपल काम। और जो हामिद की टोन थी, सभी की टोन, जो हामिद की टोन थी, बात करने का तरीका था, उसने सभी को बहुत कंसीलिएटरी बना दिया था, क्योंकि सब काम हो गए थे। इट वाज ओनली टीजिंग यू, आई वाज, कि हम आपको सिर्फ मजाक कर रहे थे। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीस प्लेन स्टील टोंग्स एंड योर ब्यूटीफुल टॉयज। और हामिद ने क्या बोला कि मैं सिर्फ आपको मजाक कर रहा था, आपके टॉय में और मेरे टोंग्स में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट द बॉयज वर नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो बॉयज फिर भी नहीं माने। Nobody is going to bless you for bringing these toys, cried Mohsin. Mohsin ने क्या आंसर किया कि जिसके लिए भी तुम ये लेके जा रहे हो वो तुम्हें ब्लेसिंग्स नहीं देगा। Hamid had to accept that none of the boy's mother would be as glad as to see the tongs as his grandmother would be to see the tongs. लेकिन हामिद ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि इन बॉयज में से किसी की भी मदर इतनी खुश नहीं होगी जितनी ग्रैंडमदर मेरी इन टोंग्स को देख के खुश होंगी, क्योंकि उन्हें नीड है इस चीज की। महमूद was hungry and took out some bananas his father had given him. महमूद बहुत भूखा था, उसने वो बनानास उठाए जो उसके फादर ने दिए थे। He shared them only with Hamid, सिर्फ हामिद के साथ शेयर किए। While others stared with their mouth watering, सारे उनकी तरफ देख रहे हैं। That was the glory of the tongs, है ना। इतनी वैल्यू थी टोंग्स की कि टोंग देखने उसने बनाना भी शेयर किया, दूसरों के साथ शेयर नहीं किया। By 11 o'clock there was excitement in the village as the revelers were coming home. Revelers का मतलब a group of people having fun in a noisy way. सभी लोग देख रहे थे कि सभी वापस आ रहे थे एंजॉय करके। On hearing Hamid's voice, Amina rushed forward and picked him up. जैसे ही हामिद की वॉइस उसकी अम्मा सुनती है, she came out from the house. When she spotted the tongs in his hand, she was taken aback. जैसे ही वो टोंग्स देखती है और वो एकदम पीछे हो जाती है। Where did you get it from? कहाँ से लेके आई? I bought it. उसने क्या बोला? मैंने खरीदे हैं। For how much? कितने के? For 3 पैसे। अमीना grew angry, वो गुस्से हो जाती है। What a stupid boy, कितना बेवकूफ लड़का है ये। It is almost noon and he hadn't eaten anything. शाम हो गई लेकिन कुछ नहीं खाया। In the entire fair, couldn't you find anything better than these tongs? What will you do with it? है ना, उसकी मदर कहती कि इन टोंग्स के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, इनके साथ अब क्या करोगे? हामिद said meekly. हामिद ने क्या बोला? You burn your fingers when you make chapati. जब आप चपाती बनाते हो आपके फिंगर्स जल जाती हैं। That's why I bought. इसीलिए मैंने आपके लिए परचेज किए। The old woman's temper changed into love. उसका गुस्सा बिल्कुल लव में चेंज हो गया। What concern of others? What a big heart. The poor boy. और उसका वो उसको कि इसका कितना बड़ा दिल है ना, कितना ये दूसरों के लिए कंसर्न्ड है, कितनी फिक्र करता है। How he must have suffered seeing other buying toys and sweets. और सोचने लगी कि इसने कितना फील किया होगा जब बाकी बच्चे टॉयज खरीद रहे थे। Even at the fair, he thought of only his grandmother. वो फेयर में भी अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सोच रहा था। She broke down. रोने लग जाती है। The old woman Amina became Amina, the little girl,
Large tears fell from her eyes while Hamid comforted her. आंसू आने शुरू हो जाते हैं और वो रोना स्टार्ट कर देती है, वो उन्हें कंफर्ट करता है. Hamida, the child, was playing the role of Hamid, the old man. जो हामिद होता है वो एक चाइल्ड था, लेकिन वो ऐसा रोल प्ले कर रहा था एक ओल्ड मैन की तरह. अमीना beseeched Allah blessing of her child. Beseech मतलब आज पूछती हैं गॉड को कि इसे ब्लेसिंग दो. How would Hamid understand what was going on inside her? और वो क्या सोच रही है कि मैं कैसे समझाऊं कि जो मैं उसके बारे में सोच रही थी, उसकी ग्रैंडमदर उसके बारे में सोच रही थी. दिस इज द होल चैप्टर कि कैसे जो वो बॉय था, रादर देन बाइंग टॉयज, he would want a useful thing from his grandmother. कि कैसे एक जो वैल्यूएबल चीज थी उसने वो खरीदी, rather than wasting money on other toys. उसने दूसरी बच्चों की तरह उनको देख के उनकी तरह पैसे वेस्ट नहीं किए. अगर कुछ लिया तो अपने ग्रैंड मदर के लिए लिया, है ना. वो सोच सकता था, उसका माइंड डाइवर्ट हो सकता था जब वो अपने दोस्तों को देख रहा था कि कोई एंजॉय कर रहा है, कोई क्या खा रहा है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा. ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज ग्रैंडमदर. वो सिर्फ अपने ग्रैंडमदर के बारे में सोच रहा था. वो अपने लेवल के बियॉन्ड नहीं जाता, है ना. जो है जितना उसके पास है, एंड ही वाज हैप्पी विद दैट. उसके साथ ही खुश था, उसी में ही अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता था. क्लियर बेटा, सभी को समझ आया? यस बेटा, गिव मी रिस्पांस. सभी को चैप्टर समझ आया? Yes, ma'am. अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लियर हुआ बेटा सभी को? Yes, ma'am. क्या समझ आया चैप्टर पढ़ के? यस. मैम, हमें मनी सोच समझ कर खर्च करनी चाहिए. कैसे? लाउड बेटा थोड़ा. क्या समझ आया? मैम, हमें दूसरों की केयर करनी चाहिए. यस. और we should always be happy in which what we are possessing. जो है जितना है, try to be happy, उतने में ही खुश रहने की कोशिश करो. यही सीखा ना? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. और जो वो हामिद था वो क्या कर सकता था? वो दूसरों बच्चों की तरह, है ना, अपने पेरेंट्स से डिमांड भी कर सकता था, जिद कर सकता था कि मुझे भी इतने पैसे दो, मैंने भी ये सब करना है. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. क्यों? बिकॉज ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज ग्रैंडमदर. ही न्यू द कंडीशन ऑफ हिज फैमिली. उसे लेवल अच्छे से पता था, फाइनेंशियल कंडीशन उसे अच्छे से पता थी. ही हैडंट ईटन एनीथिंग. उसने कुछ नहीं खाया. क्यों? बिकॉज ही न्यू अबाउट द सफरिंग ऑफ हिज ग्रैंडमदर. उसके सफरिंग को उसको अच्छे से पता था. ठीक है बेटा. इसके क्वेश्चन आंसर जो आपकी सेकंड पोएम थी उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको शेयर किए जाएंगे. उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. तो बेटा सही बच्चों, बेटा अपनी अटेंडेंस लगवाओ. जिसका मैं नाम लूंगी उस प्रेजेंट में बोल के. फर्स्ट इज मनजोत कौर 2486. Present, ma'am. नेक्स्ट प्रिंस. प्रिंस बेटा अपनी आईडी बताओ. प्रिंस.
पायल, पायल बेटा अपनी आपकी आईडी, प्रेजेंट मैम। आईडी बेटा 2016। 2016। ओके, इकबाल सिंह, इकबाल सिंह प्रेजेंट। अर्शवीर कौर प्लस राजवीर कौर, अर्शवीर कौर राजवीर कौर। नेक्स्ट गोविंद साही, प्रेजेंट मैम। दिलप्रीत कौर 2669, प्रेजेंट मैम। हर्षप्रीत सिंह 2663, हर्षप्रीत सिंह। नेक्स्ट है मनपिंदर कौर, आईडी 1839। यस मैम। नेक्स्ट है महकनूर कौर, नूरप्रीत कौर 218, प्रेजेंट मैम। ऋषभ यादव, प्रेजेंट मैम। शुबाना, प्रेजेंट मैम। शुबाना आईडी 20। प्रेजेंट मैम। ओके बेटा, बेटा प्रिंस आपने बेटा अपनी आईडी नहीं बताई मुझे। मैं 2169। 2169, हाँ जी 2169। बेटा जब आप एंटर करते हो ना, अपना नाम लिखते हो, तो एक तो अपना पूरा नाम लिखा करो विद सिंह और कौर, ओके और अपनी आईडी भी मेंशन किया करो, मुझे पूछनी ना पड़े। ओके ओके मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट मीटिंग आपकी फ्राइडे होगी, बाकियों को भी बोलोगे अटेंड करें सभी। ओके बेटा, गुड बाय टू ऑल। किसी कोई डाउट है तो बेटा पूछो। चैप्टर रीड करवाया, नंबर 3। यस बेटा मंजूर बोलो। मैम आपने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए थे? नहीं नहीं बेटा किए नहीं, सेकंड के अभी करने हैं। ठीक है, ओके मैम। और यस मैम। और बच्चे कोई डाउट? ओके बेटा, तो मीटिंग खत्म कर रही हूँ मैं, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। फर्स्ट और नोटबुक्स अपने अच्छे से मेंटेन कर लेनी है सभी ने। ओके बेटा, गुड बाय टू ऑल। थैंक यू।